ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ, ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਬਿਦਾਰਿਓ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੇ। ਦਇਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਜੋ ਮੰਗਹਿ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਬੀਐ। ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੇਹੀ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਦ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ। ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਦ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਆਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂਗ। ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਮੋਹੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਛਿਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ, ਆਗਾਹਾਂ ਕੂਤਰਾਂਗ। ਪਿੱਛਾ ਫੇਰਨਾ ਮੋਹੜੜਾ, ਨਾਨਕ ਛਿਜ ਅਵੇਹਾ ਵਾਰ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਾ ਚਾਈਆ। ਹਬ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿੱਤ, ਹਬੇ ਜਾਣਨ ਆਪਣਾ। ਕਹੀ ਨ ਢਾਹੇ ਚਿੱਤ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਗੁਜੜਾ ਲੱਦਮ ਲਾਲ, ਮੱਥੈ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਥਿਆ। ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨ, ਜਿੱਥੈ ਪ੍ਰਿਯ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੂੰ ਵਠਿਆ। ਪੌੜੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਤੁਧ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਲਖਮੀ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਲੱਖ 84 ਮੇਦਨੀ, ਸਭ ਸੇਵਕ ਰੰਦਾ। ਇਹ ਬੈਰੀ ਮਿੱਤਰ ਸਭ ਕੀਤਿਆ, ਨਹਿ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ। ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁੱਛੇ, ਜਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਾ ਤੁਧ ਪਾਵੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ, ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ, ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਲਮਗੀਰ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਖਣੇ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ 6 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1096 ਅੰਕ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ,
ते उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दखणे महला पंजवा। अगाहा कू तरांग पिछा फेर न मोहटड़ा। नानक छिज अवेहा वार बोहड़ न होवी जन्मड़ा। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं। अज दे इस पावन सलोक द्वारा सतगुरु जी सानू सचेत कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि ऐ जीव तैनू ये मनुखा देही प्राप्त हुई है। इस मनुखा देही दे राही तू लाहा लेना कर। इस मनुखा देही दे राही तू उद्यम करना कर ताकि तैनू दोबारा संसार जन्म ना लेना पवे, क्योंकि ये बार बार दहियाँ नहीं प्राप्त होंदियां हैं। अज सानू मनुखा देही मिली है, कल नूं पता नहीं किहड़ी प्राप्त होनी है। जे कूकर दी जून प्राप्त होगी थामा थामा ते विचरांगे, टेढ़ियां मेढ़ियां जूना च भटकांगे। तो सतगुरु कहंदे ये मनुखा देही एक ऐसी है जिस देही दे राही तू अपने जीवन नूं सफला कर सकदा है। सफला जीवन तां होना है जे नाम दी कमाई करेगा। तो सतगुरु कहते अगाहां कू तरांग पिछा फेर ना मोहडड़ा। जदों अपने जीवन विच तू अगाह वधू सोच रखना कर। अगाह वधू सोच भाव वो सोच जिहदे राही जिहड़ी सोच राही तू उस परबतगार नूं चेते कर सके, उस मालक प्रभु दे गुणां दा गैन कर सके। ये नहीं कि कबीर काल करंता अभय कर अब करता सोय ताल। पाछा कछु ना होएगो जो सिर पर आवे काल। किसी नूं आख दे कि भाई नाम जप लो, सिमरन कर लो, बाणी पढ़ लो, तो कह देंदे ने कि साडे कोल समा ही नहीं है। असी तो इन्ने कामां कारां च बिजी हाँ कि साडे कोल तां सिर खुरकण दा समा भी नहीं। इस तरह जवाब दिंदे ने। पर भगत जी कहंदे ने नहीं, जे जदों सिर उत्ते काल आ गया ना, कहंदे कुछ भी नहीं है बंदिया तू कर सकदा। जिहड़ा तैनूं ये मनुखा देही मिली है, मनुखा देही दे विच तू अपने जीवन नूं सफला कर। सफला किवें होना है? नाम जप के बंदगी करके। यही है अगाहां कू तरांग। तू पिछे ना हटना कर। इस देही दे राही बंदगी कर, उस मालक दे गुणां दा गैन करना कर, फिर तेरा मनुखा जन्म सफला होवेगा। तू पिछा ना मुड़ना कर। ते सतगुरु कहंदे ने नानक छिज अवेहा वार बोहड़ ना होवी जन्मड़ा। कहंदे ये जिहड़ा मनुखा जन्म है, तैनूं इस मनुखा जन्म दे विच ही तू छिज अवेहा वार, इस जन्म दे विच ही तू लाहा लै। इस जन्म दे विच ही इस मनुखा जन्म सफला कर। जे तू सोचे कि मैं दोबारा मैनू जन्म मिल जाएगा, कहंदे फिर बोहड़ ना होवी जन्मड़ा। जे इत्थे लाहा खट लिया तो दोबारा तू जम्मण मरण के चक्कर विच नहीं पवेगा, भाव तू मुक्त हो जाएगा। इसे करके गुरु साहबान जी सानू बार बार ये समझा रहे हैं कि बार बार सतगुरु गुरबाणी भी दाही सेध दिंदे ने कि भाई ये जन्म जिहड़ा बार बार मिलण वाला नहीं। इस जन्म दे राही तू वो खजाना कतर कर जिहड़ा खजाना तेरे नाल निभण वाला है। जदों गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं पुछीए तो धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बचन करते हैं, कहते राम सिमर यह है तेरा काज है। माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग।
जगत सुख मान मिठिया झूठो सब साज है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते असली ए बंदे ए जीव तेरा मुख कारज किहड़ा है? रमंती राम का सिमरन करना। तू बार बार चेते कर, बार बार उस मालक की इबादत कर, वाहिगुरु वाहिगुरु जपना कर। बाकी तू अपने काम धंधियां च लग्या होया ठीक है। दसां नूहां की किरत हर एक मनुख की ये सोच है कि मैं जिंदगी च कामयाब होवां, मेरे कोल चंगा धन संपदा होवे, कारोबार चंगा होवे। हर एक मनुख की ये सोच है। अपनी दसां नूहां की किरत भी कर ते नाल नाल तू उस परबतगार नूं चेते भी कर। कहंदे असल तेरा जिहड़ा जिंदगी का मकसद यही है। इस तरीके नाल तू उस मालक का सिमरन कर लवेगा, गुरु वाला बन जाएगा तो गुरु ने तेरे उत्ते बख्शिश करनी। फिर बोहड़ ना होवी जन्मड़ा। जो तू अपने जीवन च उद्यम करेगा, अमृत वेले का समा होवेगा, अमृत वेले की संभाल करके उस मालक की इबादत विच बैठ जाएगा तो उदों वो जिहड़ियां घड़ियां ने लेखे विच लग जांदियां ने। क्योंकि जिन्हां दा प्यार गुरु के चरणों नाल पै गया, जिहड़े गुरु चरणों नाल जुड़ गए, अमृत वेले गुणां की सांझ पाउंदे ने, जिहड़े अमृत वेले उठ के गुरु के दर ते प्रभु के सन्मुख हो के भिखारी बन के सतगुर के दर तो दाता मंगते हैं तो गुरु साहबान जी उन्होंने झोलियां भर देंदे ने। पर लोड़ है गुरु ते सिदक दी, भरोसे दी। जो तक साडा गुरु ते भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, उद तक कुछ भी नहीं होना। भाई तिलके दा आप जी सारे इतिहास जानते हो कि हुशियारपुर का रहन वाला भाई तिलका जिन्हें पंजवें पातशाह के समय सिक्खी धारण की। सतगुरु जी सिक्खी के प्रचार वास्ते इनू प्रचारक थापिया तो सिक्खी का प्रचार कर रहा हुशियारपुर के इलाके दे विच। उत्थे ही इलाके च महेशा नाम एक जोगी रहिंदा है। भाई तिलके जी का जीवन कईयां ने तिलकू लिखना किया है, तिलका तिलकू एक ही नाम ने। कहते ने इहो जिहा जीवन कि अमृत वेले उठते पहर रात रहिंदी तो से उस मालक का सिमरन करते, गुरु गुरु जपते, समाधि विच लीन होंदे ते गुरु साहबान दे चरणों का ध्यान धारण करने दे आनंद दे विच असली खजाना कतर कर रहे हैं। तो घर घर दे विच गुरु नानक का जो सुनेहा है, मैसेज है, वो घर घर पहुँचा रहे हैं। जिहड़ा उत्थों का जोगी सी महेशा, उहदी हौली हौली जिहड़ी प्रभुता दी वो घटदी गई तो मन दे विच ईरखा करन लग पिया कि ये गुरु का सिख इत्थे चल के आया, इन्हें गुरु नानक दे घर का प्रचार किया तो लोग मेरे कोलों आणों हट के सारे दे दर ते जांदे ने। तो उदों मन च ईरखा की तो अपने चेले पालकियां नाल बह के सलाह मशवरा किया। सारे नगर च ढंढोरा फरा दिता कि जिहड़ा एक बारी महेशे जोगी दे दर्शन दीदारे करेगा उन्होंने स्वर्ग एक दिन लई स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी। हुण भेड़ चाल सी जो लोगों तक ये गल पहुँची, ऐसा लोगों के मन च उत्साह पैदा होया कि बहुत सारे लोग महेशे जोगी दे कोल जाके पहुँचण लग पे, उन्होंने जाके मत्था टेकते ने ते तिल फुल भेटावां आ रही हैं। पर जिहड़े सूझवान से जिहड़े गुरबाणी पढ़ते सन, जिहड़े संगी सी भाई तिलकू जी दे ते उन्होंने गुरु के बचनों उत्ते भरोसा सी कि नहीं ये सब कुछ पखंड है। गुरु का सिख तो केवल गुरबाणी नूं ही गुरु के चरण मानता है। गुरु के सिख लई गुरां दी बाणी ही स्वर्ग है। इस करके गुरु के सिख तो अठे पैर उस मालक का सिमरन करते, गुरु गुरु जपते ने। ते कहंदे ने जदों लोकां ने मत्था टेकिया, महेशा जोगी अपने जिहड़े साथियों नूं पुछदा, चेले पालकियां नूं, कि भाई सारे ने मेरे आके दर्शनदारे कर ले ते अगों
चेले पाल के कहण लगे सारे नगर दे आए ने पर एक गुरु का सिख है जिहदा नाम है भाई तिलकू भाई तिलका, वो तुहाडे दर्शन दीदारे करन वास्ते नहीं आया। कहते ने उस समय महेशे जोगी ने अपने आदमी भेजे तो आखिया कि जाके गुरु के सिख नूं आखो कि दुनिया के लोग जिन्ने भी हो लोग सन उन्होंने एक दिन लिए मैं स्वर्ग की प्राप्ति लई अपने दर्शन दीदारे देना कीते ने, ते तुसी जे मेरे दर्शन दीदारे करन लई आवोगे तुहानूं एक महीने वास्ते स्वर्ग के दीदार हो जाणगे। ते सिख उस समय के चेले पाल के गए, भाई तिलकू जी नूं जाके आखिया। भाई तिलकू जी कहण लगे नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि कवन नरक या सुरग विचारा संतन दो काढ़े, हम काहू की काड़ न कढ़ते अपने गुर आराधे। कि संतन दो राधे हम काहू की काड़ न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। भगत जी कहण लगे, भगत कबीर साहिबान की पंक्ति पढ़ के कि साडे गुरु का बचन है, जिहड़े रब दे प्यारे संत जन हुंदे ने गुरमुख हुंदे ने, वो स्वर्ग नरक की विचार नहीं करते। उन्हां दा काम हुंदा कि परमात्मा की इबादत करनी, मेहनत मशक्कत करनी, तो उन्होंने विश्वास हुंदा कि साडा गुरु साडा परमेश्वर साडे उत्ते बख्शिश करेगा, जिदूं आपां चेते कर रहे हैं तो फल अपने आप सानूं देवेगा। जदों हुण इस तरीके दे नाल कहंदे ने जाके ਉਹਦੇ चेलियां ने दसिया कि वह तो इनकार करता है, तो इन्हें फिर भेजे कहने 1 साल वास्ते तुहानूं दर्शन दीदारे होणगे, 1 साल वास्ते मेरे आके दीदार करो तुहानूं स्वर्ग की प्राप्ति होवेगी। तो भाई तिलकू जी ने फिर इनकार कर दिता। तो अखीर ते ये महेशा जोगी खुद भाई तिलकू दे घर चल के आया, आके कहंदे ने दरवाज़ा खड़काया कि मैं महेशा जोगी तैनूं दर्शन दीदारे देण वास्ते आया हाँ, दरवाज़ा खोल। तो भाई तिलकू कहण लग्या कि नहीं, मैं तुहाडे जैसिਆਂ दे मत्थे नहीं लगना, मैं नहीं तुहाडे दीदार करने, मैनूं अपने गुरु उत्ते भरोसा, गुरु उत्ते विश्वास। सिख हर समय अपने गुरु दे दीदार करता है, सिख गुरु उत्ते भरोसा रखता है। जदों इन्हें सुनिया तो कहन लग्या उस समय कि तैनूं तेरे गुरु का वास्ता एक बारी दरवाज़ा तो खोल। मन च दे विचार आ रही है कि जिहदा सिख इन्ने दृढ़ निश्चय वाला है वो गुरु किड्डा टाढ़ा होवेगा, क्यों ना मैं भी ऐसे गुरु के दीदार करा दर्शन करा ताकि मेरा भी जीवन सफला हो जाए। जिहड़ी जिंदगी है ये जिंदगी मैं पखंड के सहित अज तक बतीत की है। बेशक दुनिया के लोगों में मैनू मान सन्मान सत्कार प्राप्त होया, ये महेशा जोगी अपने अंदर विचार करता है। बेशक मैनू मान सन्मान सत्कार मिलिया, पर गल यह है कि मैनू अपने अंदर की शांति नहीं प्राप्त हुई। तो सिख दे घर चल के आया, तो सिख दे बचना तो जिहड़े सिख दे बचन अमृत वर्गे सन, जो सिख दे बचना च इन्ना रस है, जिन्होंने अपने गुरु उत्ते दृढ़ निश्चा है, इहदा गुरु किड्डा बड़ा बलवान होवे, क्यों ना मैं भी गुरु वाला बन के पखंड नूं छड्ड के ये अपने जीवन नूं सफला करा। जदों आख्या ना तैन गुरु का वास्ता एक बारी दरवाज़ा खोल, तो गुरु का वास्ता पाया। तो भाई तिलके जी ने कहते दरवाज़ा खोलिया, तो उस समय महेशे जोगी ने माफ़ी मंगी, कहन लग्या ऐ गुरु दे सिखा, मैं तेरे कोल चल के आया हाँ, जिस जिहड़ा गुरु तेरा है उस गुरु दे मैनू भी एक बारी दीदार दर्शन कराना कर, ताकि मेरा भी जीवन सफला हो जाए। तो इतिहासकार लिखते हैं, कहते फिर ये महेशे जोगी नूं नाल लैके भाई तिलकू जी अमृतसर साहिब की धरती ते पहुँचे। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उस समय गद्दी उत्ते विराजमान सन, संगतां नूं दर्शन दीदारे दे रहे सी। जदों ये सतगुरां दी हजूरी विच पहुँचे आ तो सतगुरु नूं आके मत्था टेकिया, दोनों हाथ जोड़ के बेनती की, जो पखंड दे सहित पिछला जन्म बतीत कीता सी
पिछली उम्र लंघी है, उहदे लई खिमा मंगना कीती ते कहण लग्या कि पातशाह किरपा करो, मन की शांति बख्शना करो, मन नूं सकून बख्शो, ताकि मन जिहड़ा मेरा खिंडिया फिरदा है, मैं पखंड दे सहित इन्ने कर्म कीते ने माया करके ही, ते मेरे पातशाह मेरे उत्ते बख्शिश करो। ते कहंदे ने उदों सतगुरु जी ने पावन उपदेश बख्शिश कीता ते उपदेश दा धारनी बन के ये भी गुरु नानक दे घर दा सिख बनिया। पहरावा बेशक जोगियां वाला, पर प्रचार गुरु नानक दे घर दा कर रहा कि गुरु नानक जो कुछ मैनू अज तक प्राप्त होया वो गुरु नानक दे घरों ही प्राप्त होया है। वो पंजवें पातशाह महाराज की शरण में जाके प्राप्त होया है। तो गुरसिख इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिन्हां नूं अपने गुरु उत्ते भरोसा हुंदा ना, वो हर समय फिर गुरु गुरु जपदे ने ते अपने नाल दे संगी साथियां नूं भी वो तार दिंदे ने। ते इहो ਜਿਹੇ गुरसिखां ने गुरमुखां ने अपने जीवन नूं सफला कीता हुंदा है। ते सतगुरु कहंदे ने नानक छिज अवेहा वार, बहुड़ ना होवी जन्मड़ा। नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं कि छिज अवेहा वार, तैनूं ये मनुखा देही मिली है, इस मनुखा देही विच ये जिहड़ा वार समा है, इस समय विच तू सफला करना कर, संभाल करना कर, तू लाहा लेना कर। किते ये ना सोची फिर जदों जो इस जन्म विच तू उस मालक नूं चेते कर लवेगा तो बहुड़ ना होवी जन्मड़ा, तेरा द्वारा जन्म नहीं होवेगा। भाव तू मुक्त हो जावेगा। जिहड़े नाम जपदे बंदगी करते हैं उन्हां नूं फिर दुनिया के लोग सत्कार दिंदे ने, वडियाई दिंदे ने। आपां सुखनी साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं। सुखनी साहिब की पावन बाणी भी सतगुरु महाराज वचन करते हैं कि धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। ते सतगुरु कहते आप भी मुक्त हो जाता, ते संसार के जीव जिहड़े दे संगी साथी हुंदे ने ना, उन्होंने भी वो मुक्त कर देंदे ने। ऐसे जन प्यारे नूं मेरी सदा लई नमस्कार है, सिजदा है। ते इन्नी गुरु सवारे सतगुरु ने वडियाई दसी जिहड़े नाम जपदे ने, जिन्हां ने अपने जीवन नूं सफला कीता, जिन्हां ने ये मन च विचार कर ली कि नहीं ये जिहड़ा जन्म है परमात्मा दे लेखे ला देना, गुरु दे लेखे ला देना है। वो फिर सास ग्रास द्वारा मालक प्रभु का सिमरन करते हैं ते जमन मरण तो वो रहत हो जाते हैं। महला पंजवा। सज्जन मैंडा चाइया, हब कहीदा मित, हब्बे जानन अपना, कही न ढाहे चित। अगले महल्ले विच पातशाह जी बचन करते हैं कि सज्जन मैडा चाइया, हब कहीदा मित। सज्जन मैंडा जिहड़ा मेरा सज्जन है, मालक है, सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दा साहो, जिहड़ा मेरा सज्जन है, मित्र है मेरा, कहंदे वो हब कहीदा मित, वो सारियां दा ही मित्र है परमात्मा। क्योंकि वो वाहिगुरु ही मेरा ही मित्र, वो सारे कदा मित्र बन के सहायता कर। जिवें विपता दे समय सच्चे मित्र जदों बेजीव उत्ते विपता पवे ते सच्चे मित्र सहायता करते हैं, इस तरह ही परमात्मा रूपी मित्र हर समय अपने प्यारियां की सहायता करता, जीवां की बांह पकड़ता है। हुक्मनामा साहब जो परसों आया सी, गुरु साहबान जी ने बचन किए सी, धन गुरु रामदास पात सोढ़ी सुल्तान जी ने कि जिथे हर आराधी है, तिथै हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत विद लिया न जाई,
हर धन संचिए भाई, जे हालत पालत हर होए सखाई। कहते भाई जिथे भी उस मालक नूं चेते किया जाता तो मालक मित्र स्वरूप होकर सहायता करता है। तो ऐसे मालक का नाम मन विच किवें वसदा? गुर किरपा ते हर मन वसै। गुरु की किरपा दे नाहीं ही हरि परमात्मा का नाम मन विच वसदा है। होर कोई तरीका नहीं, होर कोई जुगती नहीं है जिहदे राही हरि वाहिगुरु का नाम मन विच वस जावे। कहंदे यही ये हरि का नाम रूपी धन ही एक ऐसा है जिहड़ा हालत पालत हर होए सखाई। इस लोक दे विच भी ते परलोक दे विच भी जीव की सहायता करता है, दोनों लोकां 'च बांह पकड़दा है। जिहड़ा ऐसा सज्जन मालक मेरा मालक है वो सारियां दा मित्र है। हब्बे जानन अपना कही ना ढाहे चित। कह सारियां नूं वो मालक वाहिगुरु अपना जानदा। जां इंज कह ली कि जीव जिन्ने भी हन, वो जिन्ने भी जीव हन, जीव उस मालक नूं अपना जानते हैं। परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जिन्ने जीव पैदा किए ने, 84 लख जूना पैदा कीतियां, 84 लख जूना पैदा करके उन्होंने परमात्मा ने अपने बनाया होया है। वो वक्री गल है कि मनुख के अंदर, जीव के अंदर मेर तेरे पैदा हुई है। मनुख मेर ते च फसिया होया है, पर असल सच्चाई ये है कि परमात्मा विच, गुरु साहबान विच कोई मेर तेर नहीं है। सतगुरु जी प्रेमा भगती देखते हैं। परमेश्वर ने जो जीव पैदा किए चार खाणियां के रूप में, जिमें एक माता पिता अपने बच्चों की पालना पोषणा करते हैं, जिंदगी भर की सारी कीती हुई कमाई माँ बाप अपने बच्चों को सैट करने ला देंगे ने, ताकि साडे बच्चे जोड़े जिंदगी च कामयाब हो जाण। तो इस तरह ही परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु साडे गुरु साहबान इस तरीके दे नाल वरतदे ने कि जदों जीव नूं लोड़ पैंदी है तो विपता के समय मालक सहायता कर, सच्चा मित्र बन के बांह पकड़ लैंदा है। तो कोई भी लोड़ होवे तो परमात्मा गुरु साहबान जी आप पूरियां करते हैं। पर जीव डोल जाता है, जीव डोलदा है तो डोल के थावां थावां ते अपनी झोली अड़दा फिरदा कि मैनू इत्थों पदार्थ प्राप्त, इत्थों प्राप्त हो जाण। पर गुरु सवारे जिन्हों गुरु ते भरोसा ना विश्वास है तो उहदियां फिर कोई भी भावना जिहड़ी है खाली नहीं जाती। सारियां भावना उस जीव दियां पूरियां हो जांदियां। पर गल तां विश्वास करन दी है। जो तक साडा विश्वास नहीं बनता वो तो कुछ भी नहीं होना। गुरु की बाणी नूं आपां पढ़दे हां, गुरबाणी गुरां दी बाणी, बाणी पढ़दे हां ते मन विच ये विचार होना चाहिए कि मैं गुरु नाल गल्लां कर रहा। जपजी साहब पढ़ रहे हैं, जपजी साहब पढ़दे हां ये सोचो कि गुरु नानक साहब महाराज नाल मेरी गल्लां बातां हो रही ने। जाप साहब की बाणी पढ़ते हैं तो जाप साहब पढ़ते हैं ये सोचो गुरु कलगीधर पातशाह ने बार बार उस परमेश्वर का नाम लैके ते परमेश्वर नूं नमस्कार की, सजदा किया है। तो मैं भी गुरु कलगीधर पातशाह के बचनों नूं पढ़ के उस निरंकार नूं, उस गुरु नूं सजदा कर रहा हाँ। इस तरह जो आप सारी बाणी पढ़ांगे तो गुरु सर बाणी पढ़ते हैं, सानू ये विश्वास कि गुरु नाल आपां गल्लां बातां कर रहे हैं तो गुरु सानू बार बार समझा रहा है। कोशिश करो तो जिथे आपां गुरबाणी पढ़ते हैं उत्थे आपां गुरबाणी नूं बाचण की कोशिश करना करिए। सहज पाठ करते हैं जां नितनेम सुखनी साहब आसा दी वार होर बाणियां पढ़ते हैं, मुबारक है। पर कोशिश करिया कि जिथे आपां जपजी साहब की पावन बाणी पढ़ते हैं, 38 पौड़ियां ने, 2 श्लोक ने, तो उदों एक एक दो दो पौड़ियां आपां अर्थां दे सिद्ध पढ़ीए, एक एक दो दो पौड़ियां अर्थां दे सिद्ध पढ़ीए तो बाकी बाणी इस तरह आप पढ़ते जाइए। तो दो दो एक एक पौड़ियां अर्थां साहब पढ़ते जावांगे
तो थोड़े दिनों के विच ही सानू जपजी साहिब के अर्थां का पता लग जाएगा। पर हुंदा की है कि कई बारी सानू जिंदगी सारी लंघ जाती है नितनेम करदिआं नूं, जपजी साहिब का पाठ करदिआं नूं, 21 पाठ भी कई गुरमुख प्यारे करदे, किरपा गुरु की रहमत है, पर अर्थां का पता नहीं। कारण की है कि पढ़न तक सीमित रह गए, कदे विचार नहीं कीती। जदों गुरु कहता कि मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुर की सिख सुनी, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाए। ये गुरु कह रहा, कहते जे एक गुरु की सिक्ख्या सुन ली, ऐ जीव ऐ सिक्खा तेरे मत विच शुभ गुणा रूपी रतन पैदा हो जाणगे, शुभ गुणा रूपी जवाहर पैदा हो जाणगे। पर गल तां गुरु की सिक्ख्या सुनन दी है। इस तरीके जो आपां बाणी नूं पढ़दे विचारदे जावांगे, जदों गुरु कहता है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। तो उदों फिर सतगुरु जी ये सवाल जवाब कर रहे हैं कि सचियार किवें होईए, कूड़ की कंध किवें तोड़ी जा सकती है, झूठ की कंध। तो सतगुरु जी कहते हैं हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। जो उस मालक की रजा विच, मालक के हुक्म विच चलांगे, उस रजा नूं मिठा करके मनांगे, तो कहते अपने आप ही फिर कूड़ की कंध टुट जाएगी। हुण जदों बाणी नूं पढ़ांगे, बाणी नूं वाचांगे, फिर ही ये सोझी सानूं आवेगी। इस करके गुरु साहबान कहते गुरु नूं अपना असली मित्र बनाना कर। गुरु ही एक सच्चा मित्र है, जिहड़ा गुरु हर समय तेरी बांह पकड़न वाला है। गुरु के चरणों च बेनती कर कि जे तू मित्र असाडड़ा, एक भोरी ना विछोड़। कि परमात्मा जे तू साडा मित्र है ना, तो किरपा कर सानू एक भोरी मरद की मातर भी अपने नाल विछोड़ना ना कर। तो यही वचन सतगुरु इत्थे कर रहे ने, कहते भाई हब्बे जानन अपना, कही न ढाहे चित। कहते वो परमात्मा जिहड़ा वाहिगुरु है, सज्जन मैंडा चाईया हब कही दा मित, जिहड़ा सारियां दा मित्र है। कहते हब्बे जानन अपना, कही न ढाहे चित, वो सारे नूं अपना जानदा है। किसे नाल भी वो इस तरीके नाल गुरु सवारियो वो धोखा नहीं करता। दुनियावी मित्र जिहड़े ने ना, ये दुनियावी मित्र तां अज सज्जन मित्र बने ने, विपता के समय ये साथ छड्ड दिंदे ने। परमेश्वर रूपी गुरु रूपी मित्र ऐसा है जो विपता के समय ही सतगुरु जी बांह पकड़ते हैं। छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जदों सतगुरु कश्मीर के इलाके विच विचरदे रहे, बारामूला नगर उधरले इलाके विच सतगुरु घोड़े उत्ते सवार नाल सूरमे सिख, कहते ने एक बच्चे की रोण की आवाज़ आई। बच्चा रो रहा, तो गुरु पातशाह कहना देखो भाई बच्चा रो रहा है, देखो किधरों आवाज़ आती है। सिख गए, देखिया कि रूड़ियां दे उत्ते एक बच्चा सुटिया होया, जी जमांदरू बच्चा, जिहदे जमदियां दे बड़े बड़े दंद पैदा उगे ने, ते जिहदे नैन नक्श टेढ़े हैं। तो सतगुरु महाराज को उस बच्चे नूं चुक के लैके आ गए, कहन लगे पातशाह ये लुथर आए। छेवें पातशाह नूं कहन लगे पातशाह ये लुथर आ। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज अपने कर कमला च पकड़ लिया, कहन लगे कौन कहता भाई लुथरा, ये सुथरा है। कहते ये सुथरा शाह है। तो सतगुरु जी ने यह नाम रख दिता। तो वह सुथरे की पालना पोषणा गुरु साहबान जी ने अपनी देख रेख की है। इतिहासकार भी लिखते हैं, कहते जो ये 5 साल का होया तो 5 वरियां का होया, तो उदों ये माँ बाप का मोह जागया। माँ बाप नूं लैण वास्ते आए, तो गुरु साहबान के चरणों च आके बेनती की कि सतगुरु सातों बहुत वड्डी गलती हुई है, आप जी बख्शिश करो, साड़ी
इस गलती नूं खिमा करना करो तो सतगुरु ते किरपा करो साडा बच्चा सानू देना करो। जदों हुण मापियां ने आके मिन्नतां तरले कीते, कहंदे ने ये भाई सुथरे शाह जी नूं इहदे मापे माता पिता अपने कोल लै गए। थोड़ा समा ये बड़ा होया, थोड़ा समा लंघिया, कुछ कुछ साल बतीत होए ने, इहदे माता पिता चढ़ाई कर गए। माता पिता चढ़ाई कीते, ये वापस फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की हजूरी विच आ गया। सेवावां करदा है, समा लंघदा गया तो 6वें पातशाह तो लैके 10वें पातशाह महाराज तक भाई सुथरे जी ने ते संगत कीती है। कहते एक दिन गुरु का दरबार सजिया होया, सजे हुए दरबार विच अलाही बाणी का कीर्तन हो रहा, अलाही बाणी का कीर्तन हो रहा ते सिख कीर्तनकारे ने रवाबी सिख ते भाई सुथरा जी कहते पिछा करके बैठ गया। जो पिछा करके बैठे आ ते सिख जिहड़े सन, क्यों जिवें आपां हुण गुरु की हजूरी विच बैठे हैं, गुरु साहबान जी प्रकाशबान ने कथा कीर्तन हो रहा है तो आपां जे पिछा करके पिछ करके बैठ जाइए तो उदों आपां संगत नूं कहे इधरले पासे मुख करो। रवाबी सिख कह रहे हैं कि भाई इधरले पासे नूं मुख करना कर, पर सुथरे ने बिल्कुल परवाह नहीं की। कहते उस कीर्तन की समाप्ति हुई, जाके गुरु पातशाह को शिकायत कर दी कि पातशाह देखो अज सुथरे शाह ने की कीता। सतगुरु कीर्तन हो रहा सी, चल रहे कीर्तन दे विच ये पिछा करके बैठ गया। कहते गुरु पातशाह जी ने उस समय भाई सुथरे नूं अपने कोल सद्दिया। हुण सतगुरु तो अंतरजामी ने, जिहड़ी अंदर की अवस्था भाई सुथरे की इन्नी चढ़ती कला वाली हो गई सी कि सामने मनुख खलोता ना तो जीव के अंदरली तस्वीर देख लेंदे सी, अंदर की है कि अंदर की चल रहा है। तो जदों सतगुरु महाराज कहते सतगुरु ने कोल सद्दिया तो कोल आया तो पातशाह नूं आके मत्था टेकिया, कहन लगे हाँ भाई सुथरे आ की गल है, अज कीर्तन हो रहा सी, कीर्तन वेले तू पिछा कर लिया, कारण की है। तो भाई सुथरे जी ने हाथ जोड़े, कहन लग्या पातशाह तुहाडे सिख मेरे मुख उत्ते चपेड़ा मार रहे सी। कहन लगे कि पातशाह असीं तां कीर्तन करते सी। ते गुरु साहबान जी जो कहन लगे कि नहीं सतगुरु चपेड़ा मारते सी। ते गुरु सिख कहन लगे सतगुरु असीं कोई चपेड़ नहीं मारना कीती। ते भाई सुथरा जी कहन लगे कि पातशाह जिहड़ा तुहाडा शब्द सी ना, गुरबाणी दा शब्द, गुरबाणी दे शब्द दा कीर्तन करदे सन। जदों कीर्तन करदे मैं बड़े ध्यान नाल कीर्तन सुनदा सी, मेरे कन्नां 'च आवाज़ पई, जदों तुहाडे बचन सुने तो मैनूं इंज लग्या कि गुरु दीयां चपेड़ां मेरे मुख उत्ते पै रहीआं ने। चलो मैं पिठ उत्ते शखाना करा तो चलो मैं बख्शिया जावांगा तो अपने कीती गुनाह नूं भुल नूं मैं गुरु दे चरणां 'च बख्शा लवांगा। पढ़न वाले गुरु सवारे जिहड़े सन उन्हां नूं पता नहीं लग्या, जिहड़ा सुनन वाला भाई सुथरे जैसा सरोता जिन्हों ज्ञान होया ते गुरु दे बचनां उत्ते पहरा दे रहा। जिवें आपां पढ़दे ना सबाणी, आनंद साहब की पावन बाणी सतगुरु जी ने 40 पौड़ियां ने, 40 पौड़ियां विच सतगुरु ने कल्ली कल्ली पौड़ी विच साडे मुख चपेड़ा ही मारना कीतियां ने। जो सतगुरु सानू कहंदे ने कि ए शरीरा मेरेया हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। फिर सतगुरु भी कहते हैं ए शरीरा मेरेया इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। ये चपेड़ा ही इसदियाँ, जिहड़े समझण वाले ने उन्होंने पता है कि ए शरीरा मेरे इस जग में आए कै, क्या तुद कर्म कमाया। ते कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना बसाया।
तो इस तरीके नाल भाई सुथरा जी कहन लगे कि पातशाह जी ये मेरे तो चपेड़ा झलियाँ नहीं गई कि मुख उत्ते किनियां खाना करा तो आना पिछा कर ले ताकि पिठ उत्ते चपेड़ा बजदियाँ रहन। तो गुरु साहबान जी ने फिर समझाया कि भाई जिहड़ी गुरबाणी है, गुरबाणी जदों आपां पढ़नी है, गुरबाणी पढ़दे समय कोशिश करनी है कि गुरबाणी नूं समझ के पढ़िया जाए। जिन्ना आपां समझ नाल पढ़ांगे, गुरबाणी नूं प्यार नाल पढ़ांगे, भावना रख के पढ़ांगे, तो उन्ना साडे उत्ते गुरु की बहुत वड्डी बख्शिश होवेगी। तो देखो उही सुथरा गुरु सवारे गुरु कलगीधर पातशाह समय तक गुरु साहबान की हजूरी विच रहा। इन्नी जिहनूं कोई जिहदी कोई गल बात नहीं पुछदा सी, जिहनूं जम्मदिआं नूं माता पिता ने लुथरा जान के रूड़ियां ते सुट दिता सी, तो उहदी सहायता किहने कीती? आप गुरु ने कीती। गुरु ने फिर गुरु का मित्र बनया, असली मित्र। गुरु माता पिता बन गया, गुरु पालनहार बन गया। गुरु ने ही बाह पकड़ी तो गुरु की कृपा के राही 10वें पातशाह महाराज समय तक सेवा करता रहा। इत्थों तक बहुत सारिया दे जीवन दी घटनावां आउंदियां ने। कहंदे ने एक बारी एक गुरु कलगीधर पातशाह दरबार सजिया आनंदपुर साहिब धरती ते। आनंदपुर साहिब की धरती ते ये सतगुरु चौर कर रहा, चौर की सेवा हो रही है। तो सामने एक जोगी आ गया जिन्हें अपने शरीर उत्ते भस्म मली हुई है, हाथ चिमटा पकड़िया होया। जदों ये गुरु के दरबार के अंदर प्रवेश होया ना, भाई सुथरे की निगाह उस जोगी के उत्ते पै गई। हुण जदों ज्यों ज्यों जोगी नेड़े आउंदा ते भाई सुथरा जी उन्होंने चढ़ा रहे हैं अपना मुख। एक तो पहला नैनक्श टेढ़े ने, उत्तों दी गुरु सरे अपना मुख टेढ़ा करके उन्होंने बार बार चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हुण जिथे जोगी सतगुरु वाल नूं आ रहा सी, सतगुरु के दर्शन त्यारे करने के लिए ध्यान सारा चल गया उस सुथरे वाल। भाई सुथरे वाल ध्यान गया तो कहते ने ज्यों ज्यों नेड़े आउंदा त्यों ते अंदर क्रोध जिहड़ा है वो वधदा गया। जो बिल्कुल सतगुरु के चरणों के कोल पहुँच गया, मत्था टेकना सी सतगुरु पातशाह जी नूं ते मत्था नहीं टेकिया। जिहड़ा चिमटा हत्थ च पकड़िया होया सी ना, वो चिमटा हत्थ च पकड़िया, चिमटे नूं चुक के भाई सुथरे नूं मारन वास्ते भाई सुथरे दे मगर दौड़ पिया। जो मगर दौड़िया, हुण भाई सुथरा जी अगे अगे तो ये पिछे पिछे। कहते ने वो हथ कित्थे आवे, सतगुर दियां कई परिक्रमा कर दित्तियां, सतगुर के पिछे जाके लोगे आ। तो गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कहते जोगीआ की गल है, साडे सिख भाई सुथरे नूं तू मार रहे आ। जो जोगी थक के हार के खलो गया ना, तो कहन लग्या पातशाह तुसीं अपने हजूरी किहो जे सिख रखे हुए ने, तुहानूं पता इन्हें की करना कीता है। मैं तुहाडे दर्शनदारे करन वास्ते आ रहा तो मैनू सतगुरु ये बार बार चढ़ा रहा सी, ते सतगुरु मैनू गुस्सा आ गया। गुरु कलगीधर पातशाह कहन लगे हाँ भाई सुथरिया दस की गल है, तू आईयां गईयां संगतां नूं तंग करदा है। तो यही सुथरा कहन लगे कि पातशाह जदों ये सामने आप दी हजूरी चल के आ रहा सी, मैं देखा कि बड़े जोगी पुरुष आ रहे हैं जिन्हें शरीर उत्ते भस्म मली हुई है तो गेरू रंग के वस्त्र पहने हुए ने। तो इस तरह मेरे मन च विचार कि बड़ा जोगी पुरुष सिद्ध पुरुष गुरु के दरबार चल के आ रहा। पर सतगुरु जो मेरे बिल्कुल नेड़े आया, मेरे ध्यान गया, बाहरला स्वरूप तो मैं देख लिया। जो मैं अंदर निगाह मारना की तो अंदर देखा कि ये अंदर तो अहंकार है, ये अंदर तो क्रोध, अंदर क्रोध ना भरिया होया है। तो सतगुरु फिर मैं उस जी उपर मली हुई भस्म सी ना, भस्म नूं पिछा हटा के मैं ये देखना चाहता सी कि अंदरला क्रोध कितना कू है। असल विच लिबास का नाम संत नहीं है, लिबास पहनना कोई संत गुरमुख नहीं बन सकता है। तो अंदर असल में जिहदी अंदरली रहनी बहनी, जिथे आपां बाहरी तौर पर रहनी रखते हैं, साडे गुरु का सानू हुक्म है
कि सिख ने अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास करना, पंजां ककारां दी वर्दी सिख ने पहन के रखनी है, ये गुरु का हुक्म है। उत्थे साडी अंदरली रहनी बहनी भी होनी चाहिए है। तो सतगुरु महाराज ने उस समय समझाया कि भाई सुथरे ने वो तस्वीर अंदरली पैदा जी पेश कर दी, क्योंकि असल विच वो इहो जिहा सी गुरमुख सी जिहदे उत्ते गुरु की वड्डी बख्शिश ते साडे जो जीव के अंदरली तस्वीर नूं देख लैंदा सी ते साडीआं जिहड़ियां पहुंचां ने वो बाहर तक हन। ते उहदे मित्र कौन बने? मित्र बने ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने अपने हत्थीं पालिया पोछिया ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की हजूरी विच उन्हें अपना बचपन बतीत करना कीता। फिर वो किरपा का पात्र बनिया, फिर रहमत हुई। सो असल विच असली गुरु है साडा, गुरु साहबान ही साडे मित्र ने। ते सतगुरु महाराज यही बचन करते हैं, कहते भाई तू मित्र बनाना परमेश्वर नूं बना, गुरु नूं अपना मित्र बना। जिहड़े दुनियावी मित्र ने अज नहीं तां कल ये साथ छड्ड दिंदे ने। इहदा मतलब नहीं कि आपां मित्र सज्जण नहीं बनाने। संसार च विचरदियां होइयां हर एक मनुख नूं, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उन्होंने मित्रां सज्जणां की लोड़ पैंदी है। इस तो बिना साडा निर्वाह भी नहीं है। दुनिया दे विच विचरदे दुनिया के लोगों नाल प्रेम कर, पर असल प्रेम करना कर परमेश्वर दे नाल। जो परमेश्वर दे नाल आपां प्रेम करां, गुरु दे नाल प्रेम करांगे तो गुरु दे दर तो आपां जो मर्जी मंग लीए तो सानू मिल जाएगा। दुनियावी मित्र ना, कोई मित्र एक मित्र कोई विपता च पै गया, औखी घड़ी औखा समा आ गया, जिंदगी का निर्वाह विच चलदा है, नदी दी ने बहन है, तो दुख सुख आउंदे ने, तो दुनियावी मित्र फिर साथ छड्ड दिंदे ने कि फलाना साडा मित्र सज्जण हुण औखी घड़ी दे विच है, जिहदे घर विच गया दे कारोबार च घाटा पै के तो मेरे तो पैसे ना मंग लवे, मैनू मदद ही ना आख दवे। जे मैं पैसे दे ते दुबारा मेरे पैसे नहीं आने, पता नहीं कारोबार चलना कि नहीं चलना है, साथ छड्ड दिंदे ने। परमेश्वर रूपी मित्र जिहड़ा है वो गुरु सरे साथ नहीं छड्डदा, वो हर समय बांह पकड़दा है। तो सानू परमेश्वर तो ही मंगना चाहिए, क्योंकि वड्डे बल वाला वड्डी ताकत वाला है परमेश्वर। उहदे च किन्नी ताकत है, आपां सतगुरु महाराज दे वचन पढ़ते हैं। सतगुरु कहते हैं कि चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो, हर जन राखे गुर गोबिंद, कंठ लाए अवगण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद। अगला वचन करते ने, जो मांग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां उहां सच होवै। ते जो मंगांगे सानू मिल जाएगा, पर मंगण की जांच होनी चाहिए है। साढ़े कोई जुगती नहीं है, बस गल यही है, जुगती नहीं है। जो जुगती सानू आ गई तो उदों असीं जो मंग लवांगे उही मिल जाएगा। तो जुगती मिलनी कित्थों है? जुगती मिलनी है गुरु साहबान पासों, जुगती मिलनी है गुरबाणी पढ़ के, गुरबाणी का अभ्यास करके। जो गुरबाणी की पंक्तियां पढ़ के, गुरबाणी नूं अपने अंदर वसा के आपां गुरु के दर ते झोली अड्ड के मंगांगे ना, पहली गल तो यह है, जो गुरबाणी दे लड़ लग गए ना, तो कुदरती तौर पर जीव की अवस्था इहो जी बनती है कि फिर उहदे अंदर पलटा बजदा, वो फिर इत्थे खड़ जाता कि कोई नहीं, मेरा काम है गुरबाणी पढ़नी, सिमरन करना, अमृत वेले संभाल करनी, बाकी जिहड़ियां मेरियां लोड़ां ने मेरे गुरु ने आप ही पूरियां करन। उन्होंने पता है गुरु नूं, गुरु किहड़ा अणजाण है, वो तो बिना बोलिया सब कुछ जानता है। गुरु नूं पता है कि समय समय अनुसार मेरे सिख नूं की चाहिए। माँ बाप नूं पता हुंदा ना कि बच्चियां दी लोड़ां पूरियां, बच्चियां नूं
हुण सियाल आ गया, सियाल वेले गर्म वस्त्र चाहिए ने, गर्मियां वेले जिहड़े बरीक वस्त्र पतले वस्त्र चाहिए हैं, ठंडे वस्त्र, ये माँ बाप ख्याल रखते हैं। माँ बाप फिर वस्त्र उस तरीके नाल सारियां लोड़ां पूरीआं करते हैं। इस तरीके नाल जिहड़ा गुरु है, गुरु भी साडियां लोड़ां पूरीआं करता है। जिहड़े असली सिख ने, जिहड़े बाणी उत्ते कीदा रखते, भरोसा रखते हैं, वो फिर गुरु सवारे गुरबाणी पढ़ते, सिमरन अभ्यास करते, वो कदे भी इधर उधर अपने मन नूं नहीं डोलन दिंदे। उन्होंने पता है कि जदों लोड़ होवेगी मेरे गुरु ने आप ही मेरी लोड़ पूरी कर देनी है। की लोड़ है किधर उधर भज्जण दी, ते गुरु नूं मैं अराधा ते गुरु ने मेरे कारज आप रास करने। गुरपूरा जन सिमरिया सही भे निहाल, नानक नाम आराधना कारज आवे रास। उदों फिर कारज रास आणगे, फिर सतगुरु महाराज की साडे ते बख्शिश होवेगी। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने किरपा की है। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना च करांगे। होई